India. दुनिया के दस्तूर से दूर है तू, मेरे नैनों का सारा नूर है तू। मेरी सांस के हर मोड़ पे, सपनों के छोर पे, देख सिर्फ तेरे हैं निशान। Once again, welcome you both. Thank you. We would like to know one thing, that is from someone who studied MBA and biotech respectively. How did you guys end up here in the music industry, and when did you realize that you wanted to pursue your interests in these fields? Okay. So basically, I was never a music composer. I was always into singing. And while I was in college, I used to do a lot of stage shows and sing for various college competitions and stuff. And my idol was Mr. R.D. Burman. So I really wanted my first break as a singer, although I was very young, I was in class 11th. This is the year 1989 that I met him. And yeah, so I was just waiting for that one break from R.D. Burman as a singer. But unfortunately, he passed away before the release of 1942, A Love Story. And I immediately gave up singing. And I was pursuing MBA from NMIMS. And I used to regularly go because it was close to our college, the Prithvi Theatre, famous Prithvi Theatre in Bombay. And there, that was a time in 1994 when all these channels were coming, Channel Z, Sony and all this. So that was a time when I used to go there, and these guys, now the big guys, Anurag Kashyap, Prashant Narayanan, Vijay Maurya, all these people, they had come from Delhi, they were struggling to get into... So Anurag Kashyap actually that time became a very good friend of mine, and he asked me to direct, do the score for one of the plays that he was going to do in Prithvi Theatre. So basically I said, yes, I'll do it. And the first ever composition that I ever composed was actually written by Anurag Kashyap. And they started their struggle in these channels where people were looking for new talent in writing and direction. Without asking me, they started recommending me as music directors. And I just took the call, and I just, and yeah, so just, in 1994, I never knew what composition was all about. In 1995, I was a composer, music composer, and then I gave up my MBA and I started pursuing music. Me being here is a series of accidents. वरना मुझे लगता नहीं आई एम इवन एलिजिबल टू सिट देयर एज ए स्टूडेंट, कि मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, जिस इकोसिस्टम से आता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी भी तरह से यहाँ एंड अप हो सकता हूँ. इवन नॉट माई ड्रीम कमिंग ट्रू, इट इज़ नॉट इवन माई ड्रीम, इट वॉज नॉट इवन माई ड्रीम. आई वॉज जस्ट राइटिंग फ्रॉम स्कूल, एंड मेरी फैमिली का तो कोई अपोजिशन और सपोर्ट दोनों नहीं था, इनडिफरेंस था. Somehow the only thing I इसके थ्रू पे सर्वाइव कर पाया was the word why, how, what, because I was a child जिसको बचपन में बोला जाता है बदतमीज बच्चा, जो बहुत सवाल पूछता है कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है. एंड somehow वो पूछते पूछते somehow मैं वो सवाल करते करते किसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में घुस गया, और वहाँ से ख़त्म होते होते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे राइटिंग में ही करियर बनाना है. उसके बाद मैंने थिएटर किया, उसके बाद मैंने MBA की प्रिपरेशन की, नहीं किया. उसके बाद मैंने रेडियो पे जॉब किया 3 साल. एंड ये सब करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे कहना है, करना है, जो एक्सप्रेस करना है मुझे, उसका जो मीडियम है, क्योंकि उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था अबाउट सिनेमा एज अ मीडियम, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, द पॉलिटिकल रीज़न, द सोशल रीज़न, द आर्टिस्टिक रीज़न. तो मुझे लगा कि शायद यही एक चीज़ है जो मुझे कर सकता हूँ मैं, और कुछ आता है नहीं मुझको. इट्स नॉट लाइक आई हैव ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस मुझे चुनना था, एक ही था, उसी में से चुनना था. तो somehow I ended up in writing lyrics and screenplay in coming industry.
chances again mostly accidents, but yes, हाँ, those accident paid off because मैं उनसे अटका रहा पूरी फोर्स के साथ में कि नहीं, नाउ आई अंडरस्टूड कि ये करना है मुझे, तो ये करना है। अगर ये इस इंडस्ट्री में आ गया मुझे, तो सुबह उठ के स्ट्रगल पर निकलना है और शाम को काम लौटने तक बाहर रहना है। दैट इज़ द ओनली थिंग। इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। Sir, this is a question for both of you. What do you think is the significance or importance, or what role does a musical soundtrack or songs play in any film? Okay. See, since the time, if you go back in time, जब से टॉकी सिनेमा शुरू हुआ है, म्यूजिक हैज़ ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर सिनेमा वाज बीइंग मेड, and especially in our Hindi film industry and any other languages in India, आप देखिएगा कि गाने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कई बार आपको फिल्म शायद याद नहीं होगी, लेकिन आपके सामने अगर गाना गुनगुना दिया जाए तो आपको याद रहेगा कि ये गाना है। तो मतलब इतना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा, हमारी कहानियाँ हमेशा से ऐसी बनती आई हैं कि गाना एक फिल्म का अहम हिस्सा रहा है, जहाँ पे वो कहानी को आगे लेके चलता है। जो लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, म्यूज़िक उसके मूड्स बनाता है। अगर वो सैड सॉन्ग है या हैप्पी सॉन्ग है या कोई मोन्टाजेस का गाना है, तो वो म्यूज़िकली इसको ट्रीट किया जाता है। और मेरे ख्याल से इट्स द मीडियम इज़ ऑडियो एंड वीडियो। यू कांट हैव ओनली वीडियो एंड यू कांट हैव ओनली ऑडियो, वरना गाने रेडियो पे भी सुन सकते हैं, वीडियो म्यूट करके भी आप देख सकते हैं। पहले एक साइलेंट फिल्म बनती थी, उसमें भी म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर वगैरह होता था। तो आई थिंक दे गो लाइक अ हैंड इन ग्लव काइंड ऑफ अ थिंग, वेयर ईच कॉम्प्लीमेंट्स, ऑडियो से वीडियो बहुत अच्छा लगने लगता है, वीडियो से ऑडियो भी अच्छा लगने लगता है। सो आई थिंक इट्स वेरी प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट इन सिनेमा। Your question was just about lyric writing or writing in general? So I think, like, what do you think? Any soundtrack or songs? Songs. Like, it's very common to say, or that Bollywood industry that it'll run on songs. It's musical. What significance does that play in like larger scene where cinema in general, songs? Look, अगर हम cinema as a medium देखें, cinema as a medium was inspired from theatre, theatre was inspired from our culture. Like अगर हमारी culture देखें हम, तो पैदा होने से लेके मरने तक हर चीज़ के लिए गीत हैं, लोक गीत है, right? Our culture survived on these songs. Stories, जिस तरह हमारे कहा जाता है, like the religious texts, the shrutis are based on the hymns, which are already poetries. Without poetry in lyrics, most of the culture is nothing, right? Even तो जब हमारे यहाँ सिनेमा इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये बहुत लाजमी था कि उसमें गीतों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लाइक जो पहली फिल्में थी, आलम आरा हो, उसमें 70 to 80% फिल्म वॉज जस्ट सॉन्ग्स, बिकॉज हम गीतों को जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं शायद कोई और उस तरह से नहीं करता। मैं किसी कल्चरल सुपेरिटी की बात नहीं कर रहा, बट कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। सो सिनेमा में जब गीत आए तो शुरुआत से थे, लेकिन धीरे धीरे किसी चीज़ का आपके पास एक्सेस होना, फिर उसका इस्तेमाल करना आना अलग अलग बात है। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन यूज़ कैसे करना अलग बात है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि गानों का इस्तेमाल कहानी कहने में कैसे कहना है, कैसे गाना जो है कहानी के बीच में रुकावट ना बने कि कहानी रुक गई, अब गाना चल रहा है फिर कहानी शुरू होगी। गाना उस कहानी को आगे बढ़ाए, फिर और नुआंस हुआ तो कहानी आगे नहीं बढ़े, कैरेक्टरग्राफ भी आगे बढ़े, फिर उसके बाद मेटाफर आगे बढ़े। धीरे धीरे ये सब तो हो गया, ये सब तो हो रहा है। फिर जो राइटर्स की अपनी डिमांड कि अब मुझे इस गाने में क्या कहना है, तो द सोशल इश्यूज़, द पॉलिटिकल इश्यूज़, द शैलेंद्र, द साहिर्स, द कैफीज़, इन्होंने किस तरह से उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस धीरे धीरे फिल्म में लिरिक्स का आया। और उसके बाद धीरे धीरे जब एक्सेस ऑफ सॉन्ग्स होने लगा, सॉन्ग्स ही फिल्म बन गया, तो धीरे धीरे नए जो फिल्म मेकर्स थे उनको लगा कि गाने जो हैं फिल्मों को अनरियल बना रहे हैं, उनकी कहानी ख़राब कर रहे हैं। तो एक नया जो पूरा न्यू वेव आया, वो विदाउट सॉन्ग्स सिनेमा बनाने लग गया। यस, गाने होते भी थे, बैकग्राउंड में होते थे। स्लोली दे डिस्कवर्ड द होल जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग विच इज़ सॉन्ग रिलेटेड सिनेमा।
बट अगेन वी आर गोइंग बैक टू इट, बट अगेन हमको वापस टाइम लगेगा उसको री इन्वेंट करने के लिए. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस एंड दिस इज़ हाउ अगेन द struggles are in front of us. So, you both have a great body of work, but one film which you both have worked on and worked together is Revolver Rani. First, we would like to play the trailer. हम हैं अलका सिंह. I love passion, fun और gun. राम राम सबन्ने राम राम, सुबह की राम राम नगर, संजा की राम राम. एडवांस. हमारे कपड़ा इटली से आते हैं. कैसे लग रहे हैं हम? मैडम आपको चलना होगा. वे रुक जा 3 स्टार. मैं बॉम्बे जाके हीरो बनना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ मेरे अंदर वो बात है, वो बात. मुझे लगता है मुझ में टैलेंट है. अरे बहुत टैलेंट है तुम्हें. क्या है? प्रोटीन सेकती हो, थोड़ी शक्ति आएगी. दावा क्या आमिर खान? चलो एक्टिंग खेलते हैं. घर की मामा इस घर के बाहर कदम निकाला तेरी टांगे तोड़ दूंगा. तोता जामे चुड़ैल की जान बसती है, तोते की गर्दन मरोड़ दो, चुड़ैल खुद ब खुद दम तोड़ देगी. ये अलका वाली चुड़ैल पलटन की रानी 2 दर्जन गोलियां ठोकेंगे बाकी सीने में. ये बात जस्ट शट अप फॉर गॉड्स सेक. क्या कमी रह गई मेरे? शादी इस महीने की 15 तारीख को होगी और ताजमहल के किनारे. कहाँ होगी? वहाँ काय को होगी? ऐसी हमारी इच्छा है. दिमाग भर आ गए हो ना तो 6 की 6 उतार दूंगी. यह है कड़कनाथ मुर्गा. कड़कनाथ खाया करो, सब मस्त रहेगा. So, what is the creative process that a composer and a lyricist both do or collaborate to make any song for a film? If respect to Revolver Rani, you can share your experience. Mostly like any movie, आप पहले कहानी जो सही प्रोसेस है. वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं. कई दफ़ा विदाउट स्टोरी भी गाने लिखवाए जाते हैं. बात कई दफ़ा स्टॉक में होते हैं गाने, कई दफ़ा बहुत प्रोसेस. बट द राइट प्रोसेस इज कि आप जब किसी भी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफर, एडिटर और राइटर, लिरिक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, आप एक अपना आइडिया, स्टोरी, स्क्रीन प्ले शेयर करते हैं उनके साथ में, सो दैट दे नो द कैरेक्टर्स, दे नो द वर्ल्ड, दे नो द लैंग्वेज, दे नो द मिल्यू. और फिर उसके लिहाज से मैं एज ए लिरिसिस्ट समझने की कोशिश करता हूँ कि सिचुएशंस कहाँ हैं जहाँ पर गाने होने चाहिए, या तो डायरेक्टर मुझे बताता है थ्रू स्क्रीन प्ले आई अंडरस्टैंड. एंड देन वो उस जगह पे जहाँ पे गाना आ रहा है वो किस कैरेक्टर के थ्रू आ रहा है, किस सिचुएशन के थ्रू आ रहा है, उसका कहानी में क्या इस्तेमाल है, उसके लिहाज पर वो ज़बान जो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं मेरी, उसके लिहाज पर जो कहना है मुझको उसको मैं लिरिकल फॉर्मेट में कहता हूँ. मोस्टली जिस तरह हमारे गाने बनते हैं 70-30 रेशियो, 70% कंपोजिशन कम फर्स्ट. तो कंपोजिशन हाउ म्यूजिक डायरेक्टर डज वो संजीव जी को बताएंगे. बट आफ्टर दैट उस कंपोजिशन, उस सिचुएशन, उस कैरेक्टर, डायरेक्टर्स ब्रीफ, मैं उस गाने को अप्रोच करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ट्रू टू द स्टोरी रहूँ. अपनी बात, अपना स्टाइल रखना, सारी चीज़ सेकेंडरी रहती है. पहली चीज़ है कि अगर मेरा गाना मेरे वर्ड स्टोरी को सर्व नहीं कर रहे तो आई एम अ फेल्ड प्रोफेशनल. सो यही रिवॉल्वर रानी में भी रहा. जब मुझे कबीर जी ने कहानी सुनाई तो कहानी जो थी चंबल एरिया जो है वहाँ सेट है, वहाँ पे बुंदेली एक्सेंट है काफ़ी. तो सारे गाने तो बुंदेली में नहीं रह सकते थे, लेकिन कुछ गानों में हमने ज़रा सा एक्सेंट देने की कोशिश की. कुछ में लोकगीत, कुछ मैड कैप गाने थे, बिकॉज इट वॉज अ ब्लैक मैड पल्प फिक्शन कॉमेडी, वेरी मोर आई थिंक 5-6 जॉनरा मिक्स इनटू वन. सो हम वी ट्राइड टू एक्सप्लोर एवरी जॉनरा विद एवरी सॉन्ग. लाइक इसमें एक गाना था जो
जो पहला गाना मैंने लिखा था इस फिल्म के लिए, जब मुझे कबीर जी ने स्टोरी दी थी, सुनाई थी, तो वो उनके सुन के मैं संजीव जी के स्टूडियो पे गया था, और उस दौरान मेरे दिमाग में कुछ है, मैंने लिख दिया, संजीव जी मुझे पढ़ के वापस ले गए, एंड आई वॉज साइंड फॉर द फिल्म। इट्स माई फर्स्ट फिल्म आई वॉज साइंड फॉर। तो वो गाना जो था वो मैंने काफ़ी उस मैट कैफ वर्ल्ड को सोच के लिखा था। टाइटल सॉन्ग फॉर द मूवी, उसका गाने का नाम था ठाएं करे कट्टा। तो अब वहाँ की ज़बान है, लाइक कि जैसे अगर बोले कि एकदम से बोलते हैं धक दनी से, कि ठाएं करे कट्टा, यहाँ धक धक दनी से, चाकू घुसे छातियों में फक धनी से। तो हाउ टू यूज़ दैट लैंग्वेज, अगर कोई गाना सुन रहा है तो समझ में आए कि ये दुनिया क्या है, ये मिलियू क्या है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, हाउ मैड इट इज़, हाउ बिजार इट इज़, हाउ वायलेंट इट इज़। तो उस सॉन्ग के थ्रू मैंने ये कोशिश की, दूसरे सॉन्ग्स जो थे उसके थ्रू मैंने लव, एक बन्ना बन्नी गाना था, बन्ना बन्नी जो है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ट्रेडिशनल तरीका है शादियों में गाने का। बन्ना बन्नी को कैसे इंटीग्रेट करके एक होप का गाना, एक ऐसी औरत का जो बिल्कुल वायलेंट है, जो पागल है, उसकी होप्स कैसी हो सकती हैं। एक गाना था सावन की हवा बावरी, अगेन अ सॉन्ग विच इज़ वेरी फोक बेस्ड। वन सॉन्ग जो दूसरा टाइटल ट्रैक था रिवॉल्वर रानी का, वॉज लाइक अ कंपोज लाइक अ 70s सॉन्ग। तो मैंने भी ट्राई किया, उसमें जो शब्द आए वो ऐसे लगे कि आपको लिटरली लगे गाना 70s में बना होगा और अब रिलीज़ हो रहा है। वो जैसे वर्ड्स हैं, जो पल्प उसके अंदर शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक जहरीली तरन्नुम का हिस्सा है, शहर जहन्नुम का किस्सा है। बड़े अभी के वर्ड नहीं लगेंगे आपको, 70s एरा के, उस पल्प एरा के वर्ड लगेंगे। तो आई ट्राइड इनकॉपरेटिंग दोस ऑल थिंग्स। वो सारे गाने, कहानी बहुत लंबी, बट हाँ, दिस इज़ हाउ आई अप्रोच्ड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स फॉर दिस फिल्म। बाकी संजीव जी को बताएंगे। आधे से ज़्यादा तो बता ही दिया है इसने। आई जस्ट कम टू द कंपोजिंग पार्ट। बेसिकली प्रोसेस सेम होता है। द डायरेक्टर गिव्स यू द स्क्रिप्ट नरेशन, पूरा स्टोरी का नरेशन देता है। कभी कभी कंपोज़र को सेपरेटली देता है, कभी कभी लिरिसिस्ट को सेपरेटली देता है, और कभी कभी साथ में दोनों होते हैं जब एक टीम होती है। एनीवे, पुनीत एंड मी कोलैबोरेटेड ऑन दिस फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स I would really give the credit to Mr. Piyush Mishra, who's a great singer, actor, writer, composer. उन्होंने recommend किया था पुनीत का नाम. He had just come from Indore. And when I met him and I heard a couple of things, तो I was like floored. तो we started working. कबीर ने situation सुनाई हुई थी और हमने गाना बनाया था. तो like he said कि जैसे एक गाना था जो पहला टाइटल ट्रैक बना था, ठाएं करे कट्टा यहाँ धक धनी से. तो फिर बाकी गाने बनने के बाद लास्ट में हम लोग ने अटेम्प्ट किया था जो मेन टाइटल ट्रैक बना. तो हम लोग ने ये सोचा था कि वो ठाएं करे बहुत ही टिपिकल एक पर्टिकुलर एरिया का गाना लगता है, लेट्स गिव इट अ लिटिल यूनिवर्सल फील. तो कबीर हैड दिस कॉन्सेप्ट इन हिज माइंड कि यार हम कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे 1970s 80s में जो रेडियो पे ट्रेलर आते थे ना, कि डायलॉग भी बोला जा रहा है, विलन बोल रहा है कुछ, पीछे म्यूजिक चल रही है, गाना भी शुरू हो गया है और बीच बीच में डायलॉग्स भी आ रहे हैं, उस तरीके का. तो लेट्स गिव इट अ ट्रिब्यूट टू द सिनेमाज ऑफ 70s. तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा गया था कि यार ये गाना थोड़ा सा उषा उत्तुप से गवाएंगे, बिकॉज आज भी सबके दिमाग में वो गाना भरा हुआ है शान फिल्म का, दोस्तों से प्यार किया. तो वी सेड कि चलो ठीक है, इट्स अ नाइस, वैसा म्यूजिक आ भी नहीं रहा है तो लेट्स अटेम्प्ट इट. तो उस तरीके से जब हमको बताया जाता है कि उस जॉनर में आपको जाना है तो हमको डिज़ाइन भी उस तरीके से देखना पड़ता है. अब आज के ज़माने अगर ट्रीटमेंट उस गाने का हमने वैसा किया है जैसे 70s में गाने बनते थे, उसको अगर आज मैं सुनिधि चौहान से गवाता तो वो फील नहीं आती, बिकॉज सुनिधि इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी वॉइस, यू नो, एंड वी नीडेड समथिंग विच वॉज वेरी रेट्रो विंटेज फील. तो उसमें एक गाना और भी था जो मैंने शायद व्हेन आई स्टार्टेड माई म्यूजिक करियर इन 94-95, दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई हैड मेड दिस सॉन्ग. जो हमारे, जैसे पुनीत ने बताया, हमारे पास कुछ बैंक्स में रहते हैं गाने, तो वो गाना मैंने बनाया था. और उस टाइम पे जब बनाया था तो एक और लिरिसिस्ट है रिवॉल्वर रानी, जिन्होंने 4 गाने लिखे. तो जब वो गाना बना रहा था तो पता नहीं बनाते बनाते क्यों मेरे दिमाग में ना गीता दत्त की वॉइस आ रही थी. तो वो गाना, जब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक सिंगर आ जाता है ना, तो आप थोड़ा सा सिंगिंग स्टाइल गाने की वैसे कंपोज करना शुरू करते हो कि ताकि वो सिंगर को ही ध्यान में रहे. अब गीता दत्त तो है नहीं. गाना मैंने 94 में बनाया था और वो किसी तरह मेरी डायरी में ही रह गया था. फिर कबीर ने कभी बोला होगा मुझे कि यार
तानसेन बुलाता है मुझे, तो तानसेन यार तुम कुछ गाने सुनाओ ना तुम्हारे बैंक के ये वो। तो मैंने सुनाया, तो इत्तेफाक से ये गाना सुनाया था उसको, तो उसको बड़ा अच्छा लगा था। तो उसने कहा था यार ये गाना किसी को देना नहीं, मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें ये गाना रखूँगा। एनीवे तो वो गाना एज इट इज़ गया। अब जैसे टाइटल ट्रैक उषा उत्तुप ने जो गाया है, उसका जो अगर आप सुनेंगे तो आपको 70s का एक फील लगेगा, मिड 70s ऑनवर्ड्स। इस गाने को हमने सोचा कि थोड़ा सा विंटेज करते हैं, बिकॉज गीता दत्त का वर्ल्ड जो था वो ऐसा वर्ल्ड था, और कंगना का जिस तरीके का कैरेक्टर है, जंगली औरत दिखाई गई है, बट कहीं ना कहीं एक दिल है उसका। तो हमने सोचा अब गीता दत्त तो है नहीं, सो हु इज़ द नेक्स्ट बेस्ट, हु इज़ लाइक नेक्स्ट टू गीता दत्त। इमीडिएटली से सब ने बोला कि आशा भोसले। तो अब ये हो गया है कि उस टाइम पे आशा भोसले तो उस लेवल पे आ गई थी कि उनको गाना भेजो, उनको समझ में आया, पसंद आया तो ही हाँ बोलेंगी। बट लकीली, आई मीन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शी लव्ड द सॉन्ग, शी केम एंड सॉन्ग। तो वो गाना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 1960s का कोई गाना चल रहा है, उस तरीके का ऑर्केस्ट्राइजेशन भी रखा। और फिर जैसे बनाया, जैसे बन्ना बन्नी गाना है तो उसमें फोक एलिमेंट्स म्यूज़िक के तरीके से डालने थे। अब ये भी होता है कि जैसे इन्होंने एक गाना बताया जो बड़ा ही फोक एलिमेंट का गाना था कि सावन की ये घटा बावरी। तो ये अगर ऐसे आप सुनोगे तो इसको एक हारमोनियम और एक ढोलक पे हम गा सकते हैं, सावन की ये घटा बावरी छेड़ नने दी दरा दरा, ऐसा लगेगा यूपी फोक वगैरह है। बट यहाँ पे उसमें एक्सपेरिमेंट कबीर ने ये बोला कि यार हम गाने को एज इट इज़ रखते हैं मेलेडी में फोक जैसा, बट इसका ट्रीटमेंट हम लोग थोड़ा सा हिप हॉप करते हैं, थोड़ा सा रैप ऐप डालते हैं ये वो, तो अपने आप में वो गाने का कलर ही बदल गया। सो इट द आइडियाज वी बाउंस समटाइम्स टू द डायरेक्टर, समटाइम्स द डायरेक्टर अगर उसको इतनी नॉलेज है कि उसको किस तरीके के गाने किस तरीके से लेने हैं और किस तरीके से वो फिल्म में डालेगा, तो वो बहुत अच्छे से समझा देता है हम लोग को, तो हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है। एंड रिवॉल्वर के साथ कबीर वॉज इंटायरली, अब जिस फिल्म में 15 गाने हैं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए 4-5 मिनट का भी एक गाना होगा तो आधी फिल्म तो गाने पे ही चली गई। और सारे गाने जिस तरीके से लिखे गए थे वो बेसिकली बैकग्राउंड सॉन्ग्स थे और कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, जबकि ओरिजिनली जब गाने और फिल्म की कहानी वगैरह काम चला था तो ओरिजिनली दे वो 18 सॉन्ग्स, 3 तो निकालने पड़े कि भाई पिक्चर खत्म हो जाएगी, गाना बजता रहेगा थिएटर में, तो निकाल दो अब इसको। तो दैट्स द वे। अब मैं, ये तो रिवॉल्वर आने की बात हुई, हाउ वी कोलैबोरेटेड। कभी कभी ऐसा होता है जो 1% किस्सा होता है जो इंडस्ट्री में होता है। कई बार मैं किस्सा ही बताता हूँ, बाद में बताता हूँ क्या बात है। तो एक बहुत ही पुराने कंपोज़र और बहुत ही सुपर हिट कंपोज़र मिस्टर ओपी नैयर, ठीक है, उनका जो म्यूज़िक रूम था वो उसी फ्लोर पे फेमस स्टूडियो है बॉम्बे में, बहुत फेमस, तो फेमस स्टूडियो है बहुत फेमस, तो वहाँ पे शक्ति सामंता, ग्रेट फिल्म मेकर जिन्होंने अमर प्रेम, आराधना, राजेश खन्ना को लॉन्च एज अ सुपरस्टार मतलब बना था उन्हीं की फिल्म से। तो नैयर साहब ने एक दिन शक्ति सामंता को बोला कि आप आइए, मैंने कुछ गाने बनाए हैं, आपके पास भी फ्री टाइम है, मेरे पास भी फ्री टाइम है, हम लोग गाने सुनते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ओपी नैयर ने 10 गाने सुनाए उनको, रैंडम। शक्ति सामंता 3 दिन के बाद उनको आके बोलता है कि वो गाने किसी को दीजिएगा नहीं, आप कहानी सुनिए। आपके गाने सुन के मैंने कहानी लिखी है, यहाँ पे पहला गाना आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे तीसरा। द फिल्म वॉज कश्मीर की कली, जिसका बहुत फेमस सॉन्ग था दीवाना हुआ बादल। अब सोचो उसमें 10 गाने हैं, एक से बढ़कर एक। वो कहानी गाने सुनने के बाद शक्ति सामंता ने लिखी है। ये 1 in 100 ऐसा होता है। जो बीच में सुनने में आया था कि शायद महेश भट्ट की पहली वाली आशिकी वॉज ऑल्सो written around the song that he had selected and then he carved the script, for it. ऐसे भी होता है काम, reverse. There's no one process. No. There can't be A के बाद B आएगा in creative. So often as filmmakers, we need to work into a deadline. And knowing that this process has to be a creative process. So how do you guys manage to meet the deadline without compromising on the outcome?
बोलो। नहीं, बिकॉज इनका काम बड़ा है, ये डायलॉग्स भी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, तो इनको डेडलाइंस की ज़्यादा वो होती है। मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैं जब एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा होता हूँ तो अपने आप को किसी और प्रोफेशनल से बहुत अलग नहीं देखता हूँ। जस्ट लाइक अ पर्सन हु इज कोडिंग ऑन अ कंप्यूटर, उसको अपना ऐप के लिए डेडलाइन पूरा करना है, सेम लाइक माई डेडलाइन। कोई बंदा खेत खोद रहा है, अभी बरसात होने वाली है, उसके पहले बीज बो देने, उसको अपनी बुआई पूरी कर देनी है, सारी काम करना है। आई एम सेम लाइक हिम, आई एम नॉट उससे ऊपर। एज अ प्रोफेशनल हु इज टेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड डिलीवरिंग ऑन इट, उसका जो प्रोसेस जो है उसमें मैं कैसे क्रिएटिव हो पाता हूँ, दैट थिंग इज आई वुड से बरसों का जो स्ट्रगल है, रियाज है। जैसे कि मैं बचपन से लेके जो कहाँ मैंने किसी तरह से somehow I survived through the all the 15 or 14 years, वो 14-15 साल, उसके बाद जो साल जो मैंने रियाज करा, वो रियाज उस वक्त काम आता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब वो एक्सपीरियंसेस आते हैं। बट द प्रेशर वो उतना ही साफ और उतना ही नॉर्मल होता है जैसा किसी और के ऊपर हो सकता है। तो मीटिंग डेडलाइन वाला मामला सिर्फ मेंटल रिगर का है कि अगर मैं टूट जाता हूँ उस दौरान तो टूट गया अगर सरवाइव कर जाता हूँ सरवाइव कर गया। लेकिन जो एक चीज़ है जिसको कहते हैं शुरुआत में पहल वो होता है आपका रेंट, बाद में आपके EMIs, बाद में आपके फैमिली एक्सपेंसेस, वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती है। एंड बॉम्बे बहुत सस्ता शहर नहीं है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। आई थिंक दैट्स हाउ द आर्ट सर्वाइव्ड देयर, बिकॉज लोगों को सर्वाइव करने के लिए क्रिएट करना ज़रूरी था। वहाँ पर ये नहीं था कि अभी यार इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है, अभी मूड नहीं बन रहा है, वो आपको ऑप्शन मुंबई देती नहीं है। सो यू हैव टू डिलीवर, और आइदर आप बाय बाय टू मुंबई, गो take a villa in Goa and create one movie in 5 years, it's okay. See, deadlines, देखो, अगर जनवरी में हमको एक डायरेक्टर ने बुला के स्क्रिप्ट सुनाई है, तो हम ये जानते हैं कि वो फरवरी में रिलीज नहीं कर रहा है, वो करेगा। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे अक्टूबर के लास्ट में साइन किया है, नवंबर 2 से मैं लिखना स्टार्ट किया और दिसंबर 10 को फिल्म फ्लोर पे जा रही है, तो वो भी हुआ है। नहीं तो मतलब वो बहुत ही रेयर केस होगा, और तुमने अगर कर दिया है तो ये तुम्हारी बहुत खास, मतलब इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट यू कुड अफोर्ड टू डू इट। तो हम मान के चलते हैं कि एक फिल्म 6 से 9 महीने तक रिलीज पे जाएगी। मान लो जनवरी में सुनाया है तो अक्टूबर नवंबर, एक फिल्म में एवरेजली 5 से 6 गाने होते हैं। रिवॉल्वर वॉज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। तो हमारे पास इतना टाइम होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मैं एक साथ, मतलब मैंने 12 फिल्में साइन की हुई हूँ, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। होता है, दिक्कत होती है, बिकॉज यू कैनॉट बी वेरी श्योर कि मैंने जो अब रिकॉर्ड कर लिया है ये ओके हो जाएगा। कभी कभी गाना पास हो जाता है, ट्यून अप्रूव हो गई है, लिरिक्स भी आ गई हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद वो बोलेगा नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, देन इट गेट्स इनटू अ बिग मेस। तो डेडलाइंस होती हैं, बट देन आई थिंक जंग भी सडनली होती है, तो आपको तैयार होकर भागना होता है लड़ने के सोल्जर्स को। वी ऑल्सो लाइक सम वॉरियर्स ओनली, जो अपनी उठाई पेटी गए, कंपोज किया, फटाफट रिकॉर्ड करना है। परसों डेडलाइंस वहाँ पे होती है कि भाई गाना दे दे, परसों शूट है, लिप सिंक है। इट्स नॉट मोर ऑफ अ कंसर्न अबाउट द रिलीज ऑफ द फिल्म, इट्स मोर अबाउट कि भाई तू गाना नहीं दे रहा, परसों शूट है, शूट मिक्स तो दे दे। अभी आप ही लोग ने वीडियो किया था, आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़े थे, सर शूट मिक्स तो दे दो। तो इट्स लाइक दैट। और आपके ऊपर फिर MIT को प्रोड्यूसर समझो आप, कि भाई 3 दिन की डेडलाइन है, आपको करना है। आप 3 दिन में, जैसे हमारे साथ होता है वैसे आपके साथ भी होता है ना, सर 2 शॉट रह गए हमारे, मैं भी बोलूँगा सर मेरा गिटारिस्ट भाग गया, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन सच अ वे कि वो भी खुश, आप भी खुश, एंड दोनों मिलके एक प्रोडक्ट के लिए काम करें। तो मेन फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट। फिर 24 घंटे में आप 48 घंटे निकालो, काम करो, डेडलाइन पे। मैच रिवॉल्वर की डेडलाइन में फंसे थे हम लोग। फाइनल मिक्सिंग में हम लोग को 7 दिन चाहिए थे, हम लोग ने 3 दिन में सारी रात सारा दिन जाग के, मैं और जो साउंड डिज़ाइनर था निमिष का बहुत अच्छा बैचमेट था फ्रेंड विवेक, हम दोनों ने बैठ के वो 7-8 दिन का काम फाइनल मिक्सिंग का 3 दिन में कंप्लीट किया था। उसके बाद जब मैं घर जाके सोया हूँ तो मैं कब उठाऊँ अगले दिन की शाम को मुझे खुद याद नहीं है। बट वी हैड टू, बिकॉज प्रेशर बहुत तरीके से आता है, अलग अलग तरीके से।
तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट में ये भी एक बोलूँगा कि ये भी एक कोर्स डालो जहाँ पे प्रेशर हैंडल कैसे किया जाए, बिकॉज सबसे बड़ी बात है टू मच ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। तो डेडलाइंस की होती है टेंशन, बट अगर हाँ स्मूथली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे कभी ना कभी फंसता ही है, और वो अननेचुरल कॉज की वजह से फंसता है जो आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड दैट कि समटाइम्स डेडलाइन आपको दी जाती है एज अ आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, आपको भी एक अंदाज़ा होता है कि जो डेडलाइन दी जा रही है रियलिस्टिक है या नहीं, राइट। इन सम केसेस किसी ने बोला कि यार ये इतने वक्त में चाहिए, अब दो चीज़ें, या तो मैं उसको समहाउ पूरा करके दे दूँ, या फिर अगर उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है डेडलाइन आगे बढ़ाने का, तो मैं उसको कहूँगा कि अगर रियलिस्टिक विल आस्क मी कि हाउ मच टाइम दिस प्रोजेक्ट नीड, तो मैं कहूँगा 3 महीने, 1 महीने में नहीं हो सकता। आई कैन समहाउ हो जाए शायद जो आपको चाहिए, बट अगर रियलिस्टिक पूछ रहे हो तो मैं उसको एक ऑनेस्ट देता हूँ कि यार मुझे लगता है कि 3 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, इफ़ यू हैव दैट मच टाइम तो हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो वो भी ऑनेस्टी ज़रूरी है थोड़ी सी, चाहे पावर्स, समटाइम्स पावर जो डायनेमिक्स होते हैं बहुत ऊपर नीचे होते हैं, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के या फिर इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के, समटाइम्स यू हैव टू नेगोशिएट ऑन दैट टू कि इन 1 डे और 2 डे नहीं हो सकता, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, लाइक Nimish ji comes from FTI and he knows how students there put their foot down on project. So yeah, this is also possible. I think we should learn that. जस्ट डोंट ओनली लर्न दैट, बाकी चीज़ें भी सीखना। Yes. Reasons, you should need reasons कि if 3.5 day, why? And I'm sure if they see a logic in what you're saying ना, they will, for example, 3 दिन के अच्छा तुम्हारे साथ है, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो तुम 1 दिन एक्स्ट्रा ले सकती हो, यू नो, उतनी ऑनेस्टी रहनी चाहिए। वैसे जी उसको 4 दिन दिए तो हमें क्यों नहीं? हाँ, वो नहीं होना चाहिए चाहिए, थे, उसको वो नहीं होना चाहिए। Justified होना चाहिए. Absolutely. Yeah, definitely. Can you share us some experiences about the challenges you faced while, like, throughout in your journey up till now? Maybe in respect to Revolver Rani, any issues that came up while the songs were made, last moment changes. If you want, if you want to give some example of specific songs, we can play those songs for the audience. Revolver, I don't think there was. I think Revolver was planned in such a way that there was never an issue with any situation. एक बार उसने decide कर लिया, हाँ ये होता था कि 8 गाने हो गए ना यार, एक सिचुएशन मेरे दिमाग में चल रही है, 9वां गाना बनेगा, ये 10वां, ये 11वां, ऐसे, मतलब ऐसा नहीं था कि यार ये 5वां वाला वर्क नहीं कर रहा है। एक गाना इसलिए हटा था जो थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से जो बोली जाती है आइटम सॉन्ग था, बिकॉज वो शूट का पूरा जो शेड्यूल था वो शेड्यूल ही पूरा एडिट हुआ था, वो स्क्रिप्ट पे था लेकिन शूट नहीं हुआ था वो। Struggle in the way I can see only from my perspective, because it was my like movie I was getting break, right? So every song for me was make or break, right? ये मुझे गाना मिलेगा कि नहीं, next वाला मुझे मिलेगा कि नहीं, next वाला मुझे मिलेगा कि नहीं, through 11 songs तक यही था कि 9 जाने के बाद भी ये नहीं था कि 10वां मैं ही लिखूंगा, मे बी अगर मैं नहीं लिख पाया वो जो चाहता डायरेक्टर तो कोई और लिख सकता है। अच्छा, दो स्ट्रगल रिमेन्स इन। अच्छा, एक मैं ऐड करूंगा इसमें, जो एक जिस ट्रेलर को आपने देखा था उसमें एक म्यूजिक आती है ना, ये गाना फिल्म में था ही नहीं। इनका एक्साइटमेंट था कि इन्होंने जब सारे अच्छे अच्छे गाने लिख दिए तो इनके दिमाग में कुछ आया होगा, इन्होंने लिख दिया कि आई एम नॉट बैड, आई एम ब्रूटल माई बेबी, और जो भी आगे की लिरिक्स। सो रीजन ये था कि एक दिन पहले Yes, can we play it? पहले पता है तो सर, पहले सुन लो, पहले कहानी सुनाए तो क्या कि क्योंकि डोंट जज मी आफ्टर लिसनिंग टू इट। तो क्या हुआ था कि एक दिन पहले कबीर जी जो डायरेक्टर हैं, ही वाज थिंकिंग कि यार क्या इसमें एक कैरेक्टर है इसके अंदर जो ग्वालियर में है और माइकल जैक्सन का फ़ैन है, एंड वेरी ट्विस्टेड कैरेक्टर, एंड ही सिंग्स बुंदेली इंग्लिश, समहाउ वेरी बैड इंग्लिश, और वो गाना चाहता है आई एम बैड ऑफ माइकल जैक्सन। अब you can't license Michael Jackson's song, it's but same as the budget of the whole movie,
सो वो सोच रहे थे, मैंने सुना, उस पर दिमाग में अटक गया, मैं घर चला गया, मुझे लगा कि कैन आई राइट अ सॉन्ग लाइक माइकल जैक्सन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ guy living in Bundelkhand, fan of Michael Jackson, a bad song, a really bad song, bad lyrics. And why not? Because I am not writing from my perspective. I am writing from that character perspective. वो कैसा सोच रहा है, उसकी ज़बान क्या होगी, वो कैसा लिखेगा. तो I gone to his mind and wrote this song. तो I gone full mad on this song. Like, so you can listen to this. Can we play the song? I'm not bad, I am brutal, my baby. I will eat you like noodle, my baby. I'm not bad, I am brutal, my baby. I will eat you like noodle, my baby. Have a doubt, go and have a doubt, go and Google, you will find I am brutal. I am brutal. I am brutal. I am I'm not bad. I am brutal, my baby. I will eat you like noodle, my baby. Have a doubt, go and Google. Have a doubt, go and Google. Go and Google, you will find I am brutal. I am brutal. I am brutal. I am brutal. So this was not there in the film. मतलब ये कबीर जो डायरेक्टर है उसने भी नहीं कंसीव किया था सिचुएशन. ये एक दिन लिख के लिया है कि ये गाना है, ये गाना है, ये गाना है और एक है सरप्राइज. तो हम लोग ने बोला आप सरप्राइज क्या है, तो ही रोट. तो लिरिक्स इतनी की वैकी सी लगी हम लोग को, तो हमने कहा हाँ यार व्हाई नॉट करते हैं इसको. अब आप सोचो जो कंसीव डायरेक्टर ने भी नहीं किया था, जो सारे गाने बनने के बाद इन्होंने एक सरप्राइज पेश किया था. पहला ट्रेलर इस गाने पे ही कटा था जो रिलीज हुआ था. तो हर गाने की देखो क्या डेस्टिनी थी. दिस सॉन्ग वाज नेवर देयर इन द एंटायर सीन. जब तक रिवॉल्वर रानी का जस्ट अब डिसाइड हो गया था कि अब ट्रेलर काटना है फिल्म का, उसके पहले इन्होंने ये सुनाया था. ये कंपोज हुआ, फटाफट प्रोग्रामिंग हुआ और दिया. सो एवरीबडी यूनानिमसली सेट की प्रोमो इस गाने, पहला ट्रेलर इस गाने पे आएगा. तो ऐसे भी हर गानों की डेस्टिनी होती है. कुछ अच्छे गाने बाद में फिल्म से निकाल दिए जाते हैं, यार ये पेस खराब कर रहा है स्क्रीन प्ले का, निकाल दो इसको. ऐसे बहुत से गाने. तो ये मतलब बेसिकली जो हमने कभी नहीं सोचा था उस गाने से मतलब ट्रेलर लॉन्च हुआ था रिवॉल्वर रानी का. एंड तो मैं जो बोल रहा था ना, जो रिवॉल्वर रानी का टाइटल ट्रैक था उषा उत्तुप का, तो वो सुनोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा 1970s को ट्रिब्यूट दी है. जस्ट प्ले द टाइटल ट्रैक फॉर. उसका भी बताता हूँ ट्रिविया. सो एक टाइटल सॉन्ग जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा था जिस पे थ्रू में साइन हुआ था वॉज अनऑफिशियल टाइटल ट्रैक मैंने लिखा था अपनी तरफ से. उसके बाद में लाइक सेट की, कवि जी सेट की कुछ एक और गाना चाहिए थोड़ा सा मासी हो, 70s का ट्रिब्यूट होना चाहिए गाना. एंड संजीव जी ने एक ट्यून बनाई जो गाने की ट्यून थी और मैं परेशान हूँ कि नया टाइटल ट्रैक है, अब मैं क्या लिखूंगा उसमें, वो ज़बान कैसे लाऊंगा. एंड व्हाट हाउ कबीर जी वाज थिंकिंग कि एग्जैक्टली वो गाना हो. Then I started like thinking about all the 60s, 70s songs, like listening to them, the kind of language they used there, especially 70s and late early 80s जो मिथुन का सिनेमा था, right? जो दोस्त कसम पैदा करने वाली की, and then आनंद बख्शी lyrics in some movies, कर्ज के गाने जो थे, जो पूरा पल्प सिनेमा था 70s का भी, इवन अमिताभ का जो पूरा पल्प सिनेमा वाला गाने थे, उस पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था, I tried to picture that imaginary. And it's कर्ज का गाना was an epic tale of like एक हसीना थी, एक दीवाना था, ये हुआ था, वो हुआ था. पूरी कहानी है कर्ज की. एक कहानी, एक स्टोरी है, right?
सो एंड काफ़ी और भी फिल्मों में ये रहा है, इवन वेस्ट में ट्रेडिशन रहा है टेलिंग स्टोरीज थ्रू सॉन्ग. सो आई ट्राइड टू टेल स्टोरी ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द फिल्म विद द लैंग्वेज ऑफ 70s. आई ट्राइड दिस समहाउ. या अगर आपने रिवॉल्वर रानी फिल्म नहीं देखी है ना, ये गाना सुन लोगी आपको पता चल जाएगा फिल्म की कहानी क्या है. इट्स एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू आनंद बख्शी. जिस तरीके की कर्ज की राइटिंग थी, एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र, यू नो, जस्ट लेट्स हियर इट. अलका, प्लीज अपने आप को सरेंडर कर दो. पुलिस फोर्स ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है. Surrender. जहरीली तरन्नुम का हिस्सा है ये शहरे जहन्नुम का किस्सा है. यहाँ बंदूकों के पास भाषा है, मोहब्बत का खूनी तमाशा है. इस भसड़ में एक थी रानी, बारूदों का वो पी के पानी, पत्थरों के पालने में पैदा हुई वो लश्करी. रिवॉल्वर रानी की ठाई ठाई ठाई, है जंगली जवानी की ठाई ठाई ठाई. रिवॉल्वर रानी की ठाई ठाई ठाई, है जंगली जवानी की ठाई ठाई ठाई. थाने से रिपोर्ट आ गई है सर. कटी घाटी की फायरिंग के पीछे अलका का ही हाथ था. Oh damn it! अलका, 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 ये चीज क्या है अलका? उसके खिलौनों में खंजर था, कैंची थी, उसकी हथेली पे झाला था. उसके घर आती भी बिच्छू थे, बिल्ली थी, उसको सैयारों ने पाला था. ये जवानी तो वो जनानी खेली थी अपनों के खून से, जुनून से. जंगल को जीता, मुट्ठी में भींचा, उसके फिर आगे ना जीत सकी सुकून से. फिर किसी में जो मोड़ आया दिल चुराने, जो चोर आया वो था गुड्डा, आंख नीली जहरीली सीरत लिए. करी उस कमीने ने ठाई ठाई ठाई, मोहब्बत के सीने में ठाई ठाई ठाई. रिवॉल्वर रानी की ठाई ठाई ठाई, है जंगली जवानी की ठाई ठाई ठाई. बैड न्यूज है सर. हम अलका को नहीं पकड़ पाए. मुझे मालूम था. Damn it! So basically it's like the entire film story is there in the lyrics. So, sir, how you were saying that Bundelkhandi English, you had to get into that, like how the character would be speaking. That's the perspective. So you get different characters with different accents from different regions. How do you do? Like, where is the? Do you meet those people? Do you meet those people who speak those accents? Do you go to those places? What's the process of catching that essence or theme of that region? It's like it's like a product research, right? अगर आपको गाना मोस्टली ऐसा होता है कि इतने लाइक इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, आई डोंट नो, बट इतनी वैरायटी के आपको बैकग्राउंड नहीं मिलते हैं. बट जब मिलते हैं आई ट्राई टू रीड. लाइक अगर मुझे गाना मिला है जो सेट है, लाइक मुझे कोई कजरी सुना था. कजरी अब मोस्टली यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं को कजरी चीज़ क्या होती है. पता है? ओके, गुड. सो कजरी का जो फॉर्म है, अब कजरी और ठुमरी में बाल बराबर का फ़र्क है. अगर आप उसको करेंगे आपको फिर उस वक्त वापस यू गो थ्रू दोज थिंग्स की कैसे लिखा जाता है, कैसे गाया जाता है इसको. अगर आपको कंपोजिशन मिल गई तो ठीक है, वरना यू गो थ्रू दैट ऑल्सो.
एंड स्क्रिप्ट में कैरेक्टर होता ही है, स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सी कहानी होती है, स्क्रिप्ट के अंदर ज़बान भी होती है अपनी, वो पहले ज़बान तय हो चुकी होती है, आप उससे ज़्यादा उससे कम की कोशिश नहीं करते। अगर ऑलरेडी किसने किसी रीजन में सेट किया है, उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए कॉम्प्लिकेशंस। कि जैसे हमारे फिल्मों में जितने पंजाबी सॉन्ग्स हैं उसके 99% सॉन्ग्स उस पंजाबी के हैं जो पंजाब में नहीं बोली जाती है। 5-6 वर्ड्स होते हैं उसमें पंजाबी के, बाकी गाना हिंदी में ही होता है। मोस्टली यहाँ पे जो बुंदेली यूज़ की है मैंने इतनी यूज़ की कि हिंदी भाषी व्यक्ति समझ पाया उसको। सो बट यस, सम रिसर्च आई डू, जस्ट लाइक एनी प्रोडक्ट रिसर्च एनीबडी डज। तो या दैट्स हाउ। एंड आप लिटरेचर पढ़ते हो थ्रू आउट द, ज़रूरी नहीं उस प्रोजेक्ट के लिए खासकर। मैं अगर पढ़ता आ रहा हूँ बहुत से राइटर्स को, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है, अगर मैंने उदय प्रकाश को पढ़ा है, अगर मैंने और बाकी राइटर्स को पढ़ा है, तो वहाँ से ही बहुत कुछ कंटेंट आता है जो आप ये सोचते हुए नहीं पढ़ते हो किसी दिन काम आएगा, लेकिन किसी दिन काम आ जाता है। इस तरह आप गाने सुनते हो, फिल्में देखते हो, सब आप लोग सिनेमा देखते हो कि यार लेट्स वॉच अ सर्जियो लियोनी मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी बाय दिस गाय अपना वेस एंडरसन। तो सबकी अपनी ग्रामर है। अब वेस एंडरसन की फिल्म देखते वक्त को लगता नहीं कि मैं एक दिन कॉमिक बुक स्टाइल मूवी बनाऊंगा, बट सम शॉर्ट मे बी some comic short, like the third music video people did, that the kind of visual comedy was involved in it. Where it came from? It came from the kind of movie those people watched कि yes इस तरह से ना visual comedy create होती है. So that's how I approach my writing also. Sir, lastly, do you guys have any advice that you would like to share with our music enthusiasts? मतलब Or maybe some students who are probably the next generation of music composers. I am the next generation. नहीं, एडवाइस देखिए, कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है कि आपने स्कूल कर लिया है, अब आप कॉलेज करेंगे, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। एडवाइस मैं यही दूंगा कि बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग. If you want to pursue music, especially I see some people who were singing for me last year here. तो आप अगर म्यूज़िक, या मैं म्यूज़िक, चलो म्यूज़िक की ही बात हो रही है तो मैं म्यूज़िक की बात करूँगा, लेकिन इसमें बाकी लोग भी सब समझ लें. The most important thing that I feel that you have to be honest about whatever you're doing. The minute आपको खास तौर से, because you are yet to decide क्या करना है, if you don't feel the passion कि मैं सोच रही हूँ कि सर मैं ये नहीं ये कर लेती हूँ, that is a very wrong approach. You should be very sure what you're doing. That is why you're coming here and doing and pursuing that course. Discipline is very important. You have to have that discipline जो आमतौर पे लोग भूल चुके हैं यहाँ पे, कि 10 बजे का टाइम दिया है तो 11 के पहले कोई नहीं आता है. You know, respect everybody's time. और ये दो चीज़ अगर आप कायदे से लग के चले जाओगे ना, बाकी आपका टैलेंट बात करेगा आपके लिए. और सबसे बड़ा माई बाप है आपका नसीब, आपका लक. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स, ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत सक्सेसफुल आदमी है वो बहुत टैलेंटेड है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो फेल हो गया है वो एकदम टैलेंटेड नहीं है. देयर इज़ अ गुड फिल्म एंड अ बैड फिल्म. देयर इज़ अ हिट फिल्म एंड देयर इज़ अ फ्लॉप फिल्म. अ गुड फिल्म कैन बी अ फ्लॉप फिल्म, बट अ बैड फिल्म, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच आर सुपर हिट फिल्म्स. तो ये कोई मिला नहीं सकते हो. तो एनीथिंग दैट you've chosen to do, I think you should have total honesty towards pursuing it further and maintaining the discipline. I think इतना भी करोगे तो I think भगवान उतना तो दे ही देता है यार कि वाकई सिंसियर है. पीछे मुड़ना नहीं. क्रिएटिव लाइन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था इनको, तो मैं आपको ही बता देता हूँ कि कोई एज नहीं होती है. रिटायरमेंट की एक एज होती है ना, 58, 60, ये वो. अब मैं आपके सामने एक नाम लूंगा. द नेम इज एनियो मॉरिकॉनी. आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा ये नाम, लेकिन आप लोग ने शायद एक थीम सुनी होगी जो पूरी वर्ल्ड की एक एंथम है, एंड दैट थीम इज सुना है? The film is The Good, Bad, the Ugly. The composer is Ennio Morricone. That man has done 500 and plus films. Spanish film, Mexican, Italy, Hollywood films.
ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स ओनली इटालियन। इतनी बार नॉमिनेट हुआ लेकिन उस बेचारे को ऑस्कर नहीं मिला। तो ऑस्कर कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि यार इसको एक ऑनररी ऑस्कर दे देते हैं। ही इज अ सुपर टैलेंटेड गाय बट ही इज नॉमिनेटेड सो मेनी टाइम्स, इसको मिला नहीं है। 2 ही आदमी को मिला है ऑनररी ऑस्कर, एक है चार्ली चैपलिन और एक है एनियो मॉरिकॉनी। अब ऑनररी मिलने के बाद तो मतलब अब कोई अवार्ड मायने नहीं रखता है ना। जैसे दादा साहब फाल्के किसी को मिल गया तो उसको फिल्म फेयर अवार्ड दे के बेइज्जती करोगे उसकी आप, ठीक है। दैट मैन एट द एज ऑफ 89, Quentin Tarantino signs him for a film called The Hateful Eight. He scores the music and he wins an Oscar after winning the honorary Oscar at the age of 89. तो कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। जिस लाइन में 20-25 साल के कंपोजर्स खड़े हैं, मैंने ऐसा ट्रैक किया है कि मुझे ऑस्कर मिलेगा, वहां पे ये 90 साल का आदमी ऑस्कर लेके जा रहा है। Every day is a new day. Every experience makes you a better person, or the choice is yours. You want to be the worst person. You know, when you have 2 choices, better to be a better person, no? So my advice would be definitely कि pursue your passion, but with all honesty and all discipline. The only thing I want to add into this, mostly बता दिया। एक चीज़ जस्ट मुझे लगती है, only thing is कि आपको अगर लगता है कि सर्टेन सब्जेक्ट इज नॉट कनेक्टेड टू योर स्ट्रीम और प्रोफेशन, इट्स अ लाई। कारपेंट्री, इसको आप कारपेंट्री बोलते हैं, जैसे आप इस कॉलेज में आते हैं आपको समझ में आता है वो किस तरह से कितना नुआंस सब्जेक्ट है, राइट। जिसको आप लगता है खेत खोदने का काम है, अगर आप उसको पढ़ेंगे समझ में आएगा हाउ नुआंस दैट वर्क इज एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर वर्क, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो ऐसा कोई काम नहीं जिसको लगता है कि अगर आपको साइंस पढ़ने में मन लग रहा है और आपको लगता है मैं तो फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट, तो मुझे साइंस पढ़ के क्या मिलेगा। मीट नोलन, राइट, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड ऑल द थ्योरीज अंडरस्टूड कि कैसे इसको कहानी में पिरोया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, राइट। आपको लगता है कि यार मैं आर्किटेक्ट पढ़ के क्या करूँगा, बट मे बी यू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन, हाउ डू यूज स्पेस, राइट। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है जिसको पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आज नहीं होगा शायद, but one day you will gain something from it. I think that's the only thing I did in my life, and questioning things and questioning other people. उसके पहले questioning myself, that what I am doing, who I am, and understanding you as a person, you as a personality, your privileges, what background you come from, why you thinking like आपके views कुछ लोग चीज़ों को लेके ऐसे क्यों हैं, it's all your conditioning, right? तो आप अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे सच क्या है, झूठ क्या है, कि वो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव जब तक आपने नहीं समझा है कि आप उसको क्यों देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि मैं कई सालों से कॉलेज नहीं गया, तो मेरा इनको देख के एक अलग पर्सपेक्टिव है बहुत, कि जब मैं एकदम में पहुँच जाऊँगा कि यार मैं कॉलेज में था 12-13 साल पहले, तब मैं कैसे सोचता था, तब मैं वो लोग जो स्टेज पे बैठे थे उनको देख के क्या सोचता था कि यार मैं क्यों सुने इन लोगों की बातों, बहुत बोरियत है यार। एंड इट्स ट्रू, बिकॉज उस वक्त इतनी कुछ चीज़ें चल रही होती है दिमाग में कि यू थिंक आई एम द बेस्ट, एंड इट्स ट्रू ऑल्सो एट एनी स्टेज। तो बट या क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, क्वेश्चनिंग थिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, यस दैट्स इट। I'll just add one thing to a question which was earlier you had put up about the struggles that you face. तो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है ना, वो रेफरेंस देते हैं। तो बात हुई कि कहाँ हो, मैंने बताया मैं ऋषिकेश में हूँ। बोला अरे कब आ रहे हो, मुझे गाना रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा हाँ तो बताइए सिचुएशन क्या है। बोलती सिचुएशन नहीं है, मेरे को लग जा गले जैसा गाना बना के दे दो। लग जा गले के फिर ये। अब मेरी खोपड़ी घूमी, मैंने कहा क्या करूँ, ऐसे तो कुछ होएगा ही नहीं, इससे गाना कैसे बनेगा ऐसा, और मैच भी हो वहाँ तक। मैंने क्या किया, जो पहली लाइन थी ना, मैंने एज इट इज उसकी मेलोडी चेंज करके वही गा के उसको भेज दिया, गाना पास हो गया। बिकॉज उसको लगा मेरी मेलोडी का लग जा गले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं लग जा गले गा रहा हूं ना, तो उसको लगा हाँ इसने मेरी बात रख ली, इसने वैसा गाना बना के दे दिया। तो बेसिकली द सॉन्ग वाज, मतलब ओरिजिनल सॉन्ग इज लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, इतना ही पार्ट। सेकेंड पार्ट का मीटर अलग था, तो मैंने इसको कैसे बना दिया,
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, दारा रा दारी रा, फिर बात हो न हो। एंड नेक्स्ट मिनट में, मतलब एक ही मिनट का गाना था जो मैंने ऐसी गा के उसको व्हाट्सएप किया था, नेक्स्ट मिनट में उसका था सॉन्ग अप्रूव्ड, गो अहेड विद रिकॉर्डिंग। मेरी मेलेडी से लग जा गले की मेलेडी का कोई मिलना कहीं से मिल नहीं रही है। इफ यू सी द म्यूजिक नोट्स ऑल्सो, दारा रा रा दी दारा, और मेरा था दारा रा दी रा दा दारा, कहीं से नहीं। लेकिन उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने लग जा गले ही गा दिया ना, तो उसको लगा हाँ मतलब मेरा गाना बन गया। कनेक्टेड टू दिस, लाइक कि इन इंडस्ट्री 30% इज यू व्हाट यू नो, जो आप सीखोगे जिंदगी भर, दिस इज योर टैलेंट, एंड 70% यू विल अंडरस्टैंड देयर कि जो आपको करना है। 70% इज दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशन, हाउ टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ पीपल, दैट्स अ 70% वर्क, एंड द 30% इज एक्चुअली डू। मैंने गाने पे कम बहस की है, बजटिंग पे ज़्यादा बहस की है प्रोड्यूसर्स के साथ। ये भी एक कहानी है। आई मीन यू हैव टू सर्वाइव विद ऑल दीज, और इट्स एन इंटरेस्टिंग फील्ड बट इट्स अ टफ फील्ड। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ बिलीफ इन योर सेल्फ टू गो अहेड। मतलब आज से 25 साल के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने यार ये लाइन क्यों चूज़ कर ली, अब तो बहुत देर हो गई है। नहीं, यू शुड, अगर डिसाइड कर लिया है देन गो अहेड, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अच्छा ही होगा। And be yourself, like whatever you are the only one. That's the only unique, like thumbprint and DNAs. That's वो सारी चीजें signs है कि we are the only one in this universe. So be yourself. Just like I told them कि मेरी पहली रिलीज फिल्म थी जो औरंगजेब, उसमें डायरेक्टर ने मुझसे कहा था with all his honesty that कि I want this song कि ऐसा लगे जैसे आनंद बख्शी ने लिखा है। I said I can be the second best Anand Bakshi because first best is himself, and I don't want to be anything second best. I can be first best Puni Sharma, even it's a mediocre according to your standard. Be original. One day somebody will like you. 136 crore is देश की population. 136 crore. The biggest blockbuster had 6 crore, 7 crore footfalls. The जो access कर पा रहा है entertainment industry और cinema को, वो कुल मिला के 5-10% भी नहीं है। इफ यू ओनली नीड 0.34% फैंस टू बिकम द बिगेस्ट म्यूजिक और मूवी स्टार इन दिस कंट्री, दैट्स इट। और वो काफ़ी मिल जाएंगे, बस ढूंढने में टाइम लगेगा। दैट्स इट सर। Thank you so much, sir. In the audience, if anyone has any questions, we're open to questions. सर बहुत सारे डाउट तो पहले से क्लियर हो गए हैं, बट एक डाउट है जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। जब मैं कोई एक सॉन्ग बनाता हूँ तो खुद ही कंपोज भी करना पड़ता है, खुद ही लिखना पड़ता है, क्योंकि सिंगिंग फील्ड में जाना है। तो सर क्या होता है, सॉन्ग स्टार्ट हो गया, उसकी स्टार्टिंग हो गई, उसका हुक भी हो गया, बट जब वर्ड्स पे आते हैं तो वापस हुक से नहीं मिलता है, और उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अब वर्ड्स को ख़त्म करके उसको हुक से कैसे मिलाएं। तो वो चीज़, वो स्ट्रक्चर कैसे, लिरिकली और कंपोजर एडवाइस, उसके लिए हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। बोथ लिरिक्स एंड कंपोजिशन बोथ। ये जो आपने सवाल किया है ना, इसका जवाब एक्चुअली कुछ नहीं है, बिकॉज ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपने जो बनाया है, जब आप मुझे सुनाएंगे तो मैं उसमें आपको ठीक करके बता सकता हूँ कि आप यहाँ गलती कर रहे थे। बिकॉज अगर 7 सुर हैं, 8वां तो है नहीं, लाखों गाने बन चुके हैं, करोड़ों अरबों और बनेंगे उसी साथ में, तो आपका भी बनेगा। आप ठीक से सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है। आई मीन देयर इज अ प्रोसेस। आप मेरे को जब गा के सुनाओगे मुखड़ा, सर अब मैंने अंतरा बनाया है, लेकिन अंतरे से मैं वापस मुखड़े पे नहीं आ रहा हूँ, तो फिर वो बैठ के बाकायदा इट्स एन एक्सरसाइज जो हमको करना पड़ेगा। मुझे आपका गाना समझना पड़ेगा, फिर आपको मैं 3-4 ऑप्शन भी बता सकता हूँ कि आप इसको ऐसे भी ला सकते हैं वापस मुखड़े में, ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, थॉट ये बता सकते हैं। हाँ, थॉट के लिहाज से सिर्फ एक मैं एडवाइस दे सकता हूँ जो किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए एज ट्रू है। मतलब इफ़ यू
like screenplay, painting, architecture, lyrics, do you know exactly, like आपको भ्रम नहीं होना चाहिए उसके बारे में, but do you exactly know the central idea of the hook line is not central idea always. Central idea mostly कभी lyrics में आता भी नहीं है खुल के, वो कहीं पीछे रहता है. और आपको central idea पता है कि आपके गाने का central idea क्या है, आपकी art का central idea क्या है, तो pondering upon like for few times you'll understand कि आप कहीं भटक तो नहीं गए, कहीं और तो नहीं चले गए सेंट्रल आइडिया से. दैट्स द वन थिंग, ओनली वन थिंग आई कैन सजेस्ट. अगर आपने पेंटिंग बना दी, आधी वाटर कलर में है और उसका एक खास स्टाइल है, तो बाकी पेंटिंग आपको कैसे ख़त्म करनी है उसका सेंट्रल आइडिया याद रहना ज़रूरी है ख़त्म होते होते. अदरवाइज इट विल गो हेवायर. आई थिंक दैट्स द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू. थैंक यू सर. और एक चीज़ मैं बताऊंगा इसमें कि ये इतना म्यूज़िक की दुनिया इतनी वास्ट है ना, कि अगर जैसे पुनीत ने एक गाना लिखा है, मुखड़ा अंतरा लिखा है, एक प्रॉपर सॉन्ग फिल्म के लिए, अब वो गाना यहाँ मैं 20 लोग को दे दूंगा और किसी को नहीं मालूम है कि उनको गाना मिला है, सबको मालूम है कि उसी को मिला है, और ये बोल दूंगा कि संडे को म्यूज़िक सिटिंग है, आप लोग गाना सुना दीजिएगा. आपको मैं बता रहा हूँ वो लिरिक्स एक होगी लेकिन मेलोडीज 20 होंगी अलग अलग. सिमिलरली एक धुन अगर मैंने बना ली है और उसको 20 राइटरों को दे दिया लिखने के लिए, तो मेरे पास 20 लिरिक्स होंगी. That happens actually. ऐसे ही होता In industry right now that's how it's happening. मतलब big huge music writers gives एक गाना 10 सिंगर गाते हैं, एक आप सुनते हो या 10 लिरिक्स होते हैं, बट या एवरी एक्सप्रेशन इज अ डिफरेंट. मैं आपको असल में चक्कर क्या है ना, ये संगीत की भाषा, फिल्म इंडस्ट्री की भाषा बिना गालियों के हो नहीं सकती हैं. मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि गाली मत देना, बाहर निकाल दिए जाओगे. तो मेरे पास तो आर डी बर्मन के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कैसे कैसे गाने बने और कैसे मुंह से क्या निकला और गाना बना है. देयर वाज अ सिचुएशन, जे ओम प्रकाश वॉज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, आनंद बख्शी लिरिसिस्ट. सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, गाना नहीं बन रहा है. सिचुएशन समझा दिए, लक्ष्मी भी आनंद बख्शी को बोल रहे हैं कि बख्शी साहब क्या हो गया है, सुबह से बैठे 11 घंटे हो गया आपने. बोला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करूँ, अब जो लिख रहा हूँ इनको समझ में नहीं आ रहा है. 8 बज गए तो सबको दारू पीना है, तो घंटी बज जाती है तो अब काम नहीं होगा भैया, कल मिलेंगे, कल पियेंगे, कल गाना काम करेंगे. तो लक्ष्मीकांत ने बोला आनंद बख्शी को कि हाँ तो फिर, बोलता है कुछ नहीं हम चलते हैं. लक्ष्मीकांत ने बोला तो फिर कब मिलोगे, बोला कि जब तुम कहोगे. तो जे एम प्रकाश ने बोला अरे मिल गया, मेरा गाना यही गाना है. एंड दैट सॉन्ग वाज अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम तो बातों बातों में वो सिचुएशन क्रैक हो गई. जो 10 घंटे बैठे थे कुछ नहीं हो रहा था. एंड दीज आर द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स. ये ऐसे बनते हैं गाने. कभी कभी आप हारमोनियम के साथ भी बैठ जाओ, 20-20 दिन गाना नहीं बनेगा, जैसे हो जाता है दिमाग. जैसे शैलन साहब के भी 3 किस्से जुड़े, जो छोटे छोटे किस्से हैं. एक किस्सा उस पर कि जब राज कपूर साहब नए ले गए थे, जब शैलन साहब को जानता नहीं था, और ले गए वहाँ पर के अब्बास साहब बैठे थे. के अब्बास साहब ने कहा कौन आदमी पता नहीं. राज कपूर ने कहा आप कहानी सुनाइए, तो के अब्बास साहब ने पूरी कहानी सुनाई जो फिल्म आवारा की कहानी थी. तो राज कपूर साहब ने कहा तो कविराज क्या कहते हैं आप. शैलन ने कहा कि गर्दिश में था पर आसमान का तारा था, आवारा था. दैट्स आवारा सॉन्ग केम बिकम आवारा सॉन्ग. गाइड जो फिल्म है, गाइड फिल्म के लिए आफ्टर उनके मोस्टली जो गाने मजरू साहब से पहले लिखवाते थे. शैलेंद्र साहब को कहानी सुनाई गई, उन्होंने वापस सब पूछा कि क्या आपको लगता है इस कहानी के बारे में. तो उन्होंने रोज़ी के कैरेक्टर, रोज़ी जो वहीदा रहमान कैरेक्टर है उसके बारे में कहा कि जैसे एक ही लाइन आती है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. समटाइम्स इतनी जल्दी चीज़ें निकल जाती है, समटाइम्स इट टेक्स सो मच टाइम. शैलेंद्र साहब ऑल्सो सेम पर्सन, सेम आर्टिस्ट, कि एक फिल्म के सारे गाने लिख चुके हैं, एक गाना बाकी है. जो म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन है, वो अपने बेटे जब तक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बने थे आर डी बर्मन, पंचम को भेजते हैं कि भाई जा और जब तक तू गाना लिखवा के नहीं आएगा शैलेंद्र से, तब तक घर मत आना. और उनके पीछे पड़े हुए हैं आर डी बर्मन की, अरे दादा गाना लिख दो. शैलेंद्र साहब टाले जा रहे हैं. पंचम दाम के पीछे घूमे जा रहे हैं. वन डे रात को बीच पर बैठे हुए ख्यालों में खोए हुए, आधी रात को उनको बहुत टाइम बाद आसमान देखते देखते गाना याद आया. उस गाने का नाम था
खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी. इट्स व्हाट अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम एंड इट बिकम अ सॉन्ग. मतलब और जैसे आप स्ट्रगल की बात करें ना, तो एस डी बर्मन का बेटा होने के बावजूद आर डी बर्मन ने बहुत स्ट्रगल किया है. आराधना के टाइम व्हेन एस डी बर्मन फेल सिक आफ्टर 3 songs गॉट ओकेड एंड एवरीथिंग, तो तब तक ये समझ में आ गया था तीसरी मंजिल, ये सब पिक्चरें पड़ोसन वगैरह आ गई थी आर डी बर्मन की. फिर भी आर डी बर्मन को लोग हल्के में लेते थे. तो आर डी बर्मन कुछ सुनाता था तो शक्ति सामंता बोलता था यार वो बाप जैसी बात नहीं है, तो खोपड़ी आदमी की सनक रही है, क्या करूं. तो फाइनली सेट की शक्तिदा एक गाना है बाबा का, वो शायद मैंने आपको सुनाया नहीं है, बाबा ने बनाया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ. एंड ही सैंग दैट सॉन्ग विच वॉज हिज सॉन्ग, बट अपने बाप के नाम से बेचारे को बेचना पड़ा. कोरा कागज था ये मन मेरा, अपने बाप के नाम पे बेचा उसने. हाँ ये देख, ये गाना होता है ना पंचम, तेरा बाप जो बनाता है. अभी उसको कौन बोलेगा कि बाप नहीं, बाप के बेटे नहीं बनाया था भाई, लेकिन बाप का नाम था, ये नाम जस्ट बन रहा था. अभी ये यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. बहुत वरना बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं जो वन सॉन्ग वंडर होता है ना, एक गाना गाया सुपर हिट हुआ, उसके बाद कहाँ है पता ही नहीं. देर से ग्रेजुअली सक्सेस आता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है. यू एंजॉय इट. फेलियर्स टीच यू मोर, सक्सेस विल नॉट टीच यू सो मच. एनीथिंग एल्स? सिंस हारमोनियम यहाँ है तो आई वुड लाइक कि आई एम एक्चुअली बिकमिंग ग्रीडी. गाना सुनाओ हारमोनियम पे, यहाँ कोई चांद वाला कैसे कंपोज कर, कैसे फिल्म में आया. काफ़ी नहीं चांद. अच्छा, तो हमने एक बात की थी रिवॉल्वर आने के गाने की, जो बड़ा विंटेज फील था, जो मैंने 95, 94 उस टाइम पे जब आई वाज जस्ट स्टार्टेड कंपोजिंग, तो ये गाना गीता दत्त को ध्यान में रख के मैंने कंपोज किया था. तो इस गाने की सिंगिंग की स्टाइल ही वो थोड़ी सी ऐसा है कि मतलब आदमी झूमता है, जैसे गीता दत्त के गाने होते थे ना, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, उस तरीका. तो गाना ऐसा था जो फाइनली आशा भोसले जी ने गाया था. फिर हम सुनेंगे उसको आशा जी के आवाज़ में. सॉन्ग दैट आई मेड वाज काफी नहीं है चांद हमारे लिए अभी, आंखें तरस रही हैं तुम्हारे लिए अभी, काफी नहीं है चांद हमारे लिए अभी, आंखें तरस रही हैं तुम्हारे लिए अभी, हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, इंतजार में ये रात भी रुकी है तुम्हारे लिए अभी, काफी नहीं है चांद हमारे लिए अभी. तो होता है ना, कभी कभी आपके सामने लिरिक्स आई होती ना, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लगते हैं. वो आपसे बात करती है कि मुझे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ. ये एक फैक्ट है. कभी कभी आपके सामने कुछ डायलॉग आ जाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है मुझे कैसे बोलना है. तो इसकी लिरिक्स मेरे को इसलिए अच्छी लगती थी कि उसने जो आखिरी में वर्ड यूज़ किया था अभी, अभी, उसको मैंने गाने की मेलोडी से सेपरेट कर दिया था. जैसे मतलब वो एक बहर में गा रही है कि काफ़ी नहीं है चांद हमारे लिए अभी, आंखें तरस रही हैं तुम्हारे लिए अभी, हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, इंतजार में
अभी। अब इसको आशा जी ने गाया है, वो आप सुनिए। काफी नहीं है चांद हमारे लिए अभी, आंखें तरस रही हैं तुम्हारे लिए अभी। हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, इंतजार में। ये रात भी रुकी है तुम्हारे लिए अभी, काफी नहीं है चांद हमारे लिए अभी। जाके सोए सोए जागे मंजर है सब ये ख्वाब के। हो, पूछो आके मुस्कुरा के, दिल में हूँ क्या क्या ताब के। बदमाशियाँ बेहिसाब, अंगड़ाइयाँ बेहिसाब, बेबाक जज्बात हैं सारे। आहा आहा, हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, हम तन्हा बेकरार नहीं इंतजार में, इंतजार में। बेचैन हर कोई है तुम्हारे लिए अभी, काफी नहीं है चांद हमारे लिए अभी। जब ये गाना आशा भोसले ने गा दिया, गीता दत्त दिमाग से निकल गई, तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरे खोपड़ी में एक गाना चल रहा होगा जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँगा। तो जब मैंने अंतरा अभी सुना ना, तो मुझे याद आया कि वो गाना था, तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही मुझे, उन्हीं का गाया हुआ गाना था, रात अकेली है। तो ऐसे कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ जाके जुड़ती है। Thank you, sir. It was a really great session.